Namaskar, good evening. You're watching Breaking Ground and I am Swati Joshi. Let me first tell you what is the top focus at 5. Samajwadi Party suspended MLA Pooja Pal for Yogi's Tareef. Congress sacked its Mantri Rajanna for criticizing Rahul. Intolerance is on full display in the INDI camp. Is sycophancy the key to survive? That's the debate today. In deep dive, we'll talk about the Supreme Court's decision of reserving its order on the plea to stay blanket removal of stray dogs. The Supreme Court pulled up MCD over inaction. Vocal minority versus silent majority debate has been ignited. In Janata's Take, later in the broadcast, we'll talk about how the situation, the apathy remains the same. Potholes, waterlogging, tree felling, electrocution and deaths. Governments change, administrations change, but the problems remain the same. Taxpayers' money down the drain. Do we deserve this? We'll ask you that question in Janata's Take and we'll tell you how are people responding to that. Let's now get you all the stories in detail. Speak the truth, face the boot. That seems to be Akhilesh Yadav's model today. Pooja Pal, an MLA now expelled from Samajwadi Party, a woman leader whose husband was gunned down by gangster Atiq Ahmed. She stood in the assembly and thanked Chief Minister Yogi Adityanath for delivering justice. She hailed him for his zero-tolerance policy towards crime and criminals. Moments later, she was shown the door by her party. The expulsion letter was signed by Akhilesh Yadav himself. This is not just punishment, it is a message. In Samajwadi Party, you can weep for the mafia to appease your vote bank, but you cannot applaud their fall. Here's what Pooja Pal said that led to the action against her. मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। Now, Pooja Pal is the widow of former BSP MLA Raju Pal, who was shot dead in 2005 by Atiq Ahmed's men after he defeated Atiq's brother Ashraf in a by-election. Raju Pal was killed just 10 days after his wedding to Pooja Pal. Pooja entered politics after her husband's murder. In 2007, she was given a BSP ticket. She won and reached the UP Assembly. In 2012, she was elected from the seat. In 2019, though she suffered defeat at the hands of BJP's Siddharth Singh, Pooja Pal then joined the Samajwadi Party in 2019 and successfully contested the 2022 Assembly election from Kaushambi's Chail seat. Today, she's been expelled for anti-party activities, hours after she praised Yogi Adityanath. And according to sources, there could be a meeting between Yogi Adityanath and Pooja Pal soon. Now, over the years, Pooja Pal has been vocal about Atiq case and has often credited Yogi Adityanath administration for the gangsters' killing. When questioned, she once again stood her ground and hailed the Chief Minister of Uttar Pradesh. पूजा पाल जी हमारे साथ है। पूजा पाल जी, पार्टी ने समाजवादी पार्टी से आप समय से विधायक रही हैं। कल रात को आपने जो सदन में बोला उसके बाद आपको पार्टी से निकाल दिया है। देखिए, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, मगर क्योंकि मैं पीड़ित महिला थी, पीड़ित विधायक थी। मैंने 2005 से लेकर 2023 तक मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, गरीबी झेला, परेशानियां झेली, सारी चीजों को झेलते हुए अतीक अहमद से मैंने लड़ने का काम किया। और उसके बाद जब हमें न्याय मिला तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया, और आज ही नहीं किया, मैंने राज्यसभा के वोटिंग में भी किया था, क्योंकि वो अपना एक पावर होता है कि मतलब आप राज्यसभा में अपने विवेक से आप वोट कर सकते हो। मैंने किया, आपने तब तो नहीं हटाया। मैंने जब कल अतीक अहमद की मैंने नाम लिया, अतीक अहमद पर मैंने बात किया, आपराधिक अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद पे बात किया, इसलिए मुझे पार्टी से हटाया। अखिलेश कह रहे कि आप बीजेपी से टिकट ले लीजिए। अरे मेरा कोई भाग्य जानता है जी। देखिए, आप पीडीएस क्या 2005 में कोई जानता तो मैं विधायक बनूंगी? आप पीडीएस से हैं, उसके बाद ही कार्रवाई हो गई। अब वो देखिए, वो किनके लिए कार्रवाई पीडीए पे किए हैं वो खुद जानते हैं। या तो ये है बचाने के लिए या किनको संपैथी गेन कराने के लिए कि हम आपके
साथ हैं, इसलिए मतलब कि हम पीढ़ियों को दरकिनार कर सकते हैं, मगर हम आपको दरकिनार नहीं कर सकते। And this is not the only instance of intolerance. From Rahul Gandhi's Congress to Akhilesh Yadav Samajwadi Party, the so-called saviors of democracy have one rule: toe the line or face the axe. Today, Pooja Pal joins the list of opposition leaders punished for speaking the truth. Her crime? Thanking Chief Minister Yogi for burying the mafia don who murdered her husband. In Congress, dissenting voices are benched. In Samajwadi Party, praise for political rival is treason. Let's take you through the recent examples. Shashi Tharoor, Congress MP, he put the nation first and was sidelined by the Congress. Manish Tiwari, another Congress MP, said that he only talks about Bharat. Bharat ki baat sunata hu. Benched during Sindoor debate. K.N. Rajanna, ex-Karnataka Mantri, criticizes vote theft, resigns after being pulled up. Anand Sharma, Congress veteran, quits as Congress Foreign Affairs Department Chief. He was part of Operation Sindoor delegation. And now Pooja Pal has also joined the list. SP MLA praises Yogi Adityanath for Atik action, expelled from the party. Let's open this up. Let's go across to our guests. We have Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Professor Geeta Bhatt, political analyst, and Ashok Yadav, Samajwadi Party's national spokesperson. I want to first come to you, Mr. Ashok Yadav, because Pooja Pal has said, जब मैंने अतीक अहमद का नाम लिया तब इनको दिक्कत हुई, जब क्रॉस वोटिंग किया था तब भी मैंने धन्यवाद योगी आदित्यनाथ को दिया था, तब मुझे क्यों नहीं पार्टी से निकाला। द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने अतीक अहमद को जमींदोज करने की बात की, इसीलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? पूजा पाल हाइडिंग बिहाइंड द पिक्चर ऑफ अतीक। She should say about her whatever he did as a traitor. He behaved like traitor, and we as a Samajwadi Party we empower her. We empower her. नहीं, एक मिनट अशोक यादव जी, आप ट्रेटर बोल रहे हैं क्या पूजा पाल को? पूजा पाल including all 6 MLAs. Pooja Pal, including all 6 MLAs who voted against Samajwadi Party to BJP in Rajya Sabha election, they all are traitor. Not only we are, I am saying, but whole of the society is recognizing them as a traitor. तो अशोक यादव जी, आप लोग ट्रेटर्स को, ट्रेटर्स अगर आपको कह रहे हैं, पूजा पाल को भी आप ट्रेटर कह रहे हैं, तो फिर गद्दारों को, दगाबाजों को आप अब तक क्यों अपनी पार्टी में रखे हुए थे? असेंबली में वो योगी जी की तारीफ करें, उसके बाद ही उनको पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा, ऐसा कुछ प्लान था आप लोगों का? पूजा पाल को कम से कम ये बताना चाहिए था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पूजा पाल के एम्पावरमेंट के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट देकर के विधायक बनाया। ये कहां से कोई गलत काम किया क्या? उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को उन्होंने प्रथम रखा। न सिर्फ पूजा पाल, उसके अलावा बाकी जो 6 MLAs हमारे हैं, इन लोगों ने अपनी लालच के आगे अपनी ईमानदारी को बेच दिया। उनके अगर गट्स है, उनके पास अगर पावर है, उनके पास मोरालिटी बची हुई है, जरा भी मोरालिटी बची हुई, इंक्लूडिंग पूजा पाल, ऑल द MLAs, दे शुड रिजाइन फर्स्ट। नहीं अशोक यादव जी, एक बात मुझे बताइए, आप मोरालिटी की बात आप कर रहे हैं, जब क्रॉस वोटिंग की थी आप तभी निकाल देते, क्योंकि पूजा पाल तो आज डंके के चोट पर कह रही है कि जब क्रॉस वोटिंग किया था तब भी योगी आदित्यनाथ को मैंने धन्यवाद दिया था, तो आपने तभी क्यों नहीं निकाला? असेंबली में जब तारीफ कर रही हैं और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर रही हैं, ये ज्यादा चुभा है आपको कि अतीक अहमद का नाम लेना ज्यादा चुभा है? वो अतीक अहमद के नाम के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग इनकी एक्टिविटीज को, 7 लोगों की एक्टिविटीज को वॉच करेंगे। अगर इनकी एक्टिविटीज पीडीए विरोधी रहेगी, पार्टी विरोधी रहेगी, जन विरोधी रहेगी, तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और पूजा पाल को ये बताना चाहिए, जिसको वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको न्याय दिया, मुख्यमंत्री डिलीवर्ड हर जस्टिस, they should show, they first of all she should say that this CM did injustice with millions of PDS people, millions of PDS डॉक्टर मिश्रा के साथ अन्याय। डॉक्टर मिश्रा, बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस किया होगा पूजा पाल के साथ, बट इनजस्टिस विद मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस हु बिलोंग टू द पीडीए। प्लीज रिस्पॉन्ड। मुझे हंसी आ रही है अपने दोस्त समाजवादी पार्टी के अशोक जी पे और स्पेशली समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पे, क्यों आप देखिए इसमें कुछ खास बात नहीं है। उनका सीधा सीधा फैक्टर हमेशा से रहा है स्वाति जी
ये इन्होंने मुस्लिम को अपना वोट बैंक बना रखा है। अतीक अहमद जैसे गुंडे को मुस्लिम वोट बैंक का सिंबल मानते हैं। पूजा पाल ने जब क्रॉस वोटिंग की थी तब उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया। वो ट्रेटर थी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी उनको सर पे बिठाए घूम रही थी। पर अब जब बात उन्होंने खुल करके बता दी, विधानसभा में अपनी बात रख दी, जिसमें योगी जी की तारीफ की, अतीक अहमद जैसे गुंडे को गन डाउन करने के लिए मोदी योगी जी के शासन का प्रेस किया, तो आज वो परेशान हो गए। आज उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। यही असली कैरेक्टर है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए अखिलेश यादव की तारीफ करे या उनके समाजवादी पार्टी के वक्त जैसा माहौल था उसकी तारीफ करे, तो बीजेपी क्या एक्शन लेगी? क्या बीजेपी को यह बात नहीं खटकेगी? स्वाति जी, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी तारीफ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। आप देखिए, अटल जी तो संसद में खड़े होकर के हमेशा अच्छे काम के साथ खड़े होते थे। विपक्ष में हम इतने दिन रहे, विपक्ष में हमेशा जो देश के लिए अच्छा काम किया जाता था उसके हम साथ खड़े रहे। हमने तो कभी किसी को एक्सपेल नहीं किया। अटल जी खुद तारीफ करते थे। आप ये देखिए, उनको यूएस में भेजा गया, यूएन में भेजा गया भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय जो विपक्ष था या एक पक्ष था, उसको भी भरोसा था कि अटल जी ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऐसे। लेकिन यहाँ पर बात स्वाति जी कुछ नहीं है, बात वोट बैंक की है। अच्छा। अब इनको दलित प्रेम नहीं नजर आ रहा है। अब पूजा पाल दलित नहीं रह गई है, अब पूजा पाल महिला नहीं रह गई है। क्योंकि इनके पीडीए का भांडा फूट गया है। सच्चाई ये है कि इनका वोट बैंक। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं है, ये तो दरअसल वोट बैंक की मजबूरी है। कंपल्शन इज दैट ऑफ वोट बैंक। आई नो अशोक यादव जी, यू वांट टू कम इन, लेकिन आई वांट टू गो अक्रॉस टू Professor Geeta Bhatt. Geeta Bhatt, this is a trend that is being witnessed across political parties in the opposition camp at the moment, and Mr. Rajanna sacked because he spoke against the vote chori campaign, the allegations being leveled by Rahul Gandhi. That was seen as a criticism of Rahul Gandhi. Here, the MLA Pooja Pal, now of course she's been expelled from Samajwadi Party, held the Chief Minister in high regards and expelled from the party, shown the door. Is sycophancy the only way to survive? Well, Swati, looks like, yes, that is the way the opposition parties, or if I can say Congress or Samajwadi Party, has been looking at its supporters or at its elected representatives from their political party, that, even if someone is praising the law and order situation of the present government, and mind you that what is important here, Swati, is to note that this is, rising above party politics. It is about putting forward a praise which is something that is synonymous to the way the women are feeling safe in Uttar Pradesh. In fact, it is very unfortunate, I must say, that a woman like Pooja Pal, who has gone through so much in life, yes, irrespective of whichever political party she was representing till now, and someone who has fought for the injustice, it was basically a widow who had come out to express her gratitude to a government, and especially towards gangsters like, Ateek Ahmed and many more, they were there in the list, Mukhtar Ansari and so many, who were in a way synonymous to fear and terror in Absolutely. and to safety of women, and if their justice was delivered, it was something, it is what kind of an anti-party activity? It is nothing but showing the true face. I mean, I don't know how people, the opposition party feels that they will be taken by the society when a woman who has become an MLA, who went through so much in life, today they have expelled her. It is in a way they are showing that and Geeta ji, Pooja Pal is reminding Samajwadi Party that if you're talking about anti-party activities, then why didn't you sack me when the cross-voting happened, when I voted for the Bharatiya Janata Party? Ashok Yadav is also with us in the broadcast. Ashok Yadav ji, बीजेपी कह रही है कि ये सब तो आप लोगों का बहाना है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अतीक अहमद के पीछे पूजा पाल छिप रही हैं, पूजा पाल कह रही हैं कि आप लोग वोट बैंक के पीछे छिप रही है। तो खाली आप ऐसे ही कह रहे हैं एंटी पार्टी, वोट बैंक आपका हर्ट ना हो जाए, ये आपकी चिंता है। पूजा पाल की मॉरलिटी तब समझ में आती जब वो
उत्तर प्रदेश में 20,000 स्कूल्स बंद किए गए या मर्ज किए गए, तो किसके स्कूल थे, किसके बच्चे पढ़ते उन स्कूलों में? दे ऑल आर बिलोंग टू पीडीए कम्युनिटीज, पुअर कम्युनिटीज, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज। उन बच्चों के एजुकेशन को योगी सरकार छीन रही थी। पूजा पाल की मोरलिटी नहीं जगी तब। अब जब हमारे पीडीए समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया, दलितों का आरक्षण लूटा गया, तब पीडीए कहा था पूजा पाल नहीं। मैं अपने आप को क्लियर बता रही हूँ, तब कहाँ थी पूजा पाल? ओके, और जब हजारों नहीं, वो तब भी समाजवादी पार्टी में ही थी और उनका कोई आपको कोई फ्लॉ, उनकी कोई खोट आपको दिखाई नहीं दे रही थी। लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर कौशल कांत बिफोर आई रैप अप। टू रैप अप, डॉक्टर कौशल कांत, बीजेपी में टिकट कंफर्म करवा लीजिए पूजा पाल, दैट्स व्हाट अखिलेश यादव हैज सेड। अखिलेश यादव को तो यही समझ में आता है ना। देखिए, ये जो कहते हैं पीडीए के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं और पीडीए चिल्लाते हैं, इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अलायंस है। परिवार के अलावा इन्हें कोई नहीं समझ में आता है। जब इनकी पहले पार्टी थी तो 32 लोगों के में से 32 लोग एक ही परिवार के थे। और जहां तक रही इनके दलित प्रेम को जब मायावती जी, जिनको गेस्ट हाउस कांड किया, उनके साथ ऐसा किया, तब उनका नारा क्या बना था? उनका नारा बना था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर। ये गुंडे कौन थे? ये समाजवादी पार्टी के, क्योंकि गुंडे पालते थे। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अब चलता है योगी जी के जमाने में। और जिस तरीके से स्कूलों की बात कर रहे हैं, आज योगी जी ने क्लियर कर दिया विधानसभा में, कोई स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। ओके, केवल राजनीति हो रही है। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर मिश्रा, Professor Bhatt and Ashok Yadav, was it anti-party activity or was it anti-vote bank statement or anti-vote bank activity that led the Samajwadi Party to expel Pooja Pal, who in fact is showing no remorse? She is reminding the Samajwadi Party of the cross-voting and how she thanked Yogi Adityanath back then as well. Thank you very much for joining us on the debate.